welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter 12, and the name of the chapter is Data Handling, right? So what is this data handling, right? What is this data being called about, right? कि data आखिर क्या है, इसकी handling कैसे होती है, right? That is all what we are going to read in this chapter. So let us begin with it. And first of all, let's see the connection of this topic with our real life, right? So Mrs. Harshita has prepared a list of the number of students out of 30. तो मिसेस हर्षिता है जिन्होंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें उनके पास टोटल 30 स्टूडेंट्स है. Who got selected in different sports teams. अब उन्होंने उन बच्चों को अलग अलग कैटेगरीज की स्पोर्ट्स में लाइक जैसे जैसे वो सिलेक्ट हुए हैं उन्हें उस अकॉर्डिंगली डिवाइड किया है. अरेंज इंफॉर्मेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो अब हमें इस इंफॉर्मेशन को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो कि स्टूडेंट्स के नंबर के अकॉर्डिंग है, राइट? सो लेट अस सी व्हाट दे आर सेइंग है. So now they are saying that यहाँ पर we have the sports team and the number of students that are selected in each sport, right? So cricket got 11 students, hockey got 3 students, badminton got 7 students, and football got 7 students as well, right? Now we need to arrange these numbers in the ascending order, right? In the increasing order, right? तो सबसे पहले जो smallest number है हम उस sport को लिखेंगे. So we can see that out of all these we have the smallest number, that is 3 in hockey. So सबसे पहले हम यहाँ पर hockey लिखेंगे and then we'll write 3 over here, right? Then we have 7 and 7 both in the badminton and football as well. So हम कुछ भी लिख सकते हैं. We can write badminton over here, that is 7, and football over here, that's also 7. Then at the last we have the largest number, that is 11. So cricket to be written here and we'll write 11 over here. Done. Now answer the following questions. अब हमें इन questions को answer करना है. Let's see what they are saying. In which team the maximum number of students got selected? कि कौन सी टीम थी जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे select हुए थे? So obviously we can know that कि largest number किस में थे? Cricket में. So that means cricket is the correct answer, right? Next, in which team only 3 students got selected? कौन सी टीम थी जिसमें सिर्फ 3 ही स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे? It is hockey as been given over here. So हम यहाँ पर hockey लिख देंगे. Then out of 30 students, how many students did not get selected in any team? अब हमें बताया था कि टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में, राइट? बट जो नंबर सिलेक्ट हुए हैं वो सिर्फ इतने हैं. तो कौन से बच्चे थे जो किसी भी टीम में सिलेक्ट नहीं हुए? So what we are going to do? We'll add these numbers. 11 plus 3 plus 7 plus 7, right? So 11 plus 3 is 14 and 14 plus 14 is 28, right? So total 28 students got selected, right? And what now we are going to do? कि 30 में से हम इन selected students को minus कर देंगे. That means 30 minus 28 gives 2, and hence we got to know that 2 students are the ones who didn't got selected in any of the team, right? Next, which 2 teams selected the same number of students? कौन सी 2 teams थी जिसमें number of students बिल्कुल same है? As we all discussed,
It's badminton and football as they both have 7 number of students each. So, we are going to write badminton and football over here. Right? Now, moving ahead, let's get started with the very first topic, which is data handling. Right? तो अब ये data handling क्या है? Let's read and try to understand. Data is the collection of information, facts and figures. कि data क्या है? Actually, it is a collection of information, facts and figures. Right? Data handling is the process of collection, reporting and showing information in a systematic way. कि डेटा हैंडलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर सभी चीजों का कलेक्शन होता है, रिपोर्टिंग होती है और सभी चीजों की इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है एक सिस्टमैटिक तरीके से. राइट नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज पिक्टोग्राफ. अब ये पिक्टोग्राफ क्या है? लेट्स फाइंड आउट. सो इट सेज a pictograph uses pictures or symbols to show numbers and represent information. कि एक पिक्टोग्राफ पिक्चर्स और सिंबल्स को यूज करता है ताकि नंबर्स को दिखाया जा सके और इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जा सके. राइट? A pictograph always has a title and a key explaining what each picture or symbol stands for. कि एक पिक्टोग्राफ में हमेशा एक टाइटल दिया गया होता है और साथ ही साथ एक की होती है. की यानी कि एक सिंबल होता है जो कि हमें बताता है कि कौन सा सिंबल कितनी चीजों को या फिर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. राइट? पिक्टोग्राफ इज बेसिकली जहां पर हम पिक्चर्स का यूज करते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए. राइट? सो लेट्स गेट दिस क्लियर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल जो कि यहाँ पर दिया गया है. It says a bouquet at a florist shop consists of a variety of flowers in it. कि एक बुके एक फ्लारिस्ट शॉप में है जहां पर उस बुके में बहुत सारे फ्लावर्स की वेराइटीज हैं. The following pictograph shows the number of different types of flowers used in the bouquet. तो यहाँ जो नीचे पिक्टोग्राफ दिया गया है ये हमें अलग अलग फ्लावर्स के नंबर्स का एक आइडिया हमें दे रहा है जो कि उस बुके में यूज किए गए हैं. स्टडी द पिक्टोग्राफ केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो हमें इस पिक्टोग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि हम नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आसानी से आंसर कर सकें. सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पिक्टोग्राफ में एक टाइटल दिया होता है. तो यहाँ हमें टाइटल दिया गया है दैट इज नंबर ऑफ फ्लावर्स यूज्ड इन द बुके. क्लियर? तो ये है हमारा टाइटल. नाउ देन वी हैव अ टेबल दैट शोज द नंबर ऑफ फ्लावर्स, right, and the number of the flowers, name of the flowers and the number of flowers जो कि हर जो हर वेराइटी का फ्लावर उस बुके में यूज किया गया है वो. राइट? सो सबसे पहले वी हैव डेफोडिल ओवर हेयर. तो डेफोडिल के लिए हमने यहाँ पर 2 फ्लावर्स लगाए हैं बट आई टोल्ड यू अबाउट द की ऑल्सो. तो वो की क्या है कि एक पिक्टोग्राफ एक फ्लावर का पिक्चर हमें 2 फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करता है. राइट? तो इस एक फ्लावर का मतलब है 2 + 2. सो दैट मीन्स टोटल हो गया 4. कि डेफोडिल के कितने फ्लावर्स थे? टोटल 4. राइट? सेम गोज विद द रोज ऑल्सो. इसमें भी 1 2 3 4 5 and 6 पिक्चर्स है. दैट मीन्स one picture is representing 2 flowers. तो हमें 6 का डबल लेना है. that is 6 2s are 12. so that means rows के कितने numbers थे? 12. clear? then next is iris. so it is 1 2 3 4 5 and the total number of iris in the bouquet are 10. right? then is tulip. 1 2 3 and 4. So tulip gives 8 flowers
And carnation, it is 1, 2, 3, 4, same again. Again it is 8. Clear? Now, they ask the question that what is the exact number of tulips in the bouquet? कि ट्यूलिप के एग्जैक्ट नंबर क्या है बुके में. अब ट्यूलिप हमने यहाँ सर्च किया था. ट्यूलिप हमें दिखा रहा है टोटल 4 पिक्चर्स, राइट, एंड 4 पिक्चर्स दैट मीन्स 8 फ्लावर्स. So we can write the total number, that is number of tulips, that is 4 into 2 is equal to 8. Each flower stands for 2 tulips and there are 4 tulips. Clear? Then, which flower is used in the least in the bouquet? कौन सा फ्लावर है जो बुके में सबसे कम यूज किया गया है? Obviously, we can see the numbers are here 4, 12, 10, 8 and 8. So it is 4, which is the least, and that means daffodil is the flower जो कि सबसे कम यूज हुआ है बुके में. So they are saying daffodils are the least used flowers in the bouquet. Correct? Then next question, which 2 flowers are the same in number? हमने इनके नंबर्स पहले ही सामने लिख दिए थे, तो हमें बताना है कौन से 2 फ्लावर्स हैं जो कि सेम नंबर में यूज हुए हैं. As we can see 8 and 8, 2 numbers are same and they represent the tulip and carnation. So the answer becomes carnations and tulips are same. Then the last question is find the total number of flowers in the bouquet. अब हमें इन फ्लावर्स का टोटल नंबर बताना है, राइट, कि बुके में टोटल कितने फ्लावर्स यूज हुए हैं. So it is, we have written the numbers over here in this way. Now it is very simple that we have to only add these numbers and we'll get the total number of flowers that we have used in the bouquet. So they are also doing the same thing. They are calculating the number of flowers. Number of daffodils, that is 2 into 2 is 4. Number of roses, that is 6 into 2 is 12. Then number of irises, 5 into 2 is 10. Number of tulips, 4 into 2 is 8. Then number of carnations, 4 into 2 is 8. Right? Then we have total number of flowers. अब total number of flowers कितने हैं? So just 4 plus 12 plus 10 plus 8 plus 8, that gives 42. So there are 42 flowers in the bouquet. Next we have construction of a pictograph. अब ये पिक्टोग्राफ क्या है और इसका कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे? अभी हमने देखा कि पिक्टोग्राफ क्या है, करेक्ट. अब अगर हमें इसको कंस्ट्रक्ट करना है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट. सो इट सेज the number of pencils in 6 days by a shopkeeper in tabulated below. तो हमें कुछ नंबर ऑफ पेंसिल्स दिए गए हैं जो कि एक शॉपकीपर ने 6 दिन में बेचे हैं, राइट. तो उनका टैबुलेटेड फॉर्म हमें यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि डेज, नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड. सो डे 1 को 5 पेंसिल्स, डे 2 को 8 पेंसिल्स, डे 3 को 9 पेंसिल्स, डे 4 को 4 पेंसिल्स, डे 5 को 7 पेंसिल्स एंड डे 6 को 3 पेंसिल्स. करेक्ट. सो अब हमें इसी का एक पिक्टोग्राफ बनाना है. सो हमने क्या किया है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स है कंस्ट्रक्शन के कि किस तरीके से हम एक पिक्टोग्राफ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. लेट अस सी स्टेप 1 व्हिच सेज रीड द डेटा एंड चूज द सिंबल टू रिप्रेजेंट इट. कि हमें सबसे पहले डेटा को रीड करना है और उसके लिए एक अच्छा सा सिंबल चूज करना है जो हम उसे रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे. देन स्टेप 2, पेंसिल इज द की विच रिप्रेजेंट्स 1 पेंसिल. तो यहाँ पर एक पेंसिल का फिगर है, एक पिक्चर है जो कि हम एज अ की यूज करेंगे जो कि हमारी 1 पेंसिल को रिप्रेजेंट करेगा, राइट. स्टेप 3, गिव द पिक्टोग्राफ अ टाइटल and draw the required number of images. कि हमें पिक्टोग्राफ को स्टेप 3 में एक टाइटल देना है, that is mandatory, and उसके बाद जितनी भी नंबर ऑफ इमेजेस हमें चाहिए, रिक्वायर्ड हैं, वो हम डेज के आगे ड्रॉ कर देंगे. क्लियर? नाउ
दे से नंबर ऑफ डेज हमें यहाँ पर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6. देन नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड, ये हमारा टाइटल है. एंड फिर हमें की बनानी है दैट शोज 1 पेंसिल फिगर इज इक्वल टू 1 पेंसिल. राइट, हमने यहाँ पर फिगर के लिए सिर्फ 1 पेंसिल ही क्यों यूज करी है? बिकॉज द नंबर्स आर नॉट वेरी हाई. जब नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं और हमें इमेजेस ड्रॉ करने में इशू हो सकता है, तब हम नंबर ऑफ थिंग्स को बढ़ा सकते हैं दैट ईच फिगर रिप्रेजेंट्स. राइट, सो डे 1 पे वी सोल्ड 5 पेंसिल्स, तो हमने 5 फिगर्स यहाँ पे ड्रॉ कर दी है पेंसिल्स की. देन डे 2 को हमने 8 पेंसिल्स सेल करी. देन डे 3 पे इट वाज 9, डे 4 पे इट वाज 4, डे 5 पे इट वाज 7, and day 6 पे it was only 3. Right, so in this way we can represent the pictograph. Right, now moving ahead, we have the exercise in which the very first question says study the given below pictograph carefully and then answer the questions that follow. तो हमें यहाँ पर एक पिक्टोग्राफ दिया गया है जिसे हमें पढ़ने के लिए बोला है और साथ ही साथ हमें इनके क्वेश्चंस जो नीचे दिए गए हैं वो आंसर करने हैं. सो सबसे पहले हमें इस पिक्टोग्राफ का रीड करना है. तो इसका हमें टाइटल दिया गया है जो कि है फूड आइटम्स लाइक्ड बाय स्टूडेंट्स. तो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली अबाउट द फूड आइटम्स जो कि बच्चों को पसंद आती है. राइट, सो यहाँ पर एक कॉलम में फूड आइटम्स के नाम है. देन इन दी सेकेंड कॉलम वी हैव द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और जो की दी हुई है दैट शोज कि ईच फिगर रिप्रेजेंट्स 2 स्टूडेंट्स, कि हर एक फिगर हमें 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है. राइट, नूडल्स वी हैव 3 फिगर्स, दैट मीन्स 3 2s आर 6. देन आइसक्रीम वी हैव 6 फिगर्स, दैट मीन्स 6 2s आर 12. Then burger, we have 5 figures, that means 5 2s are 10. Then pizzas, we have 4 figures, that is 4 into 2 is 8. Right? Now, we have to answer these questions. So it says, which food item is the most favorite among students? तो कौन सी आइटम है जो सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है? तो we can see numbers यहाँ पर हमने clearly लिखे हुए हैं. And सबसे बड़ा नंबर it is 12 that belongs to ice cream. So that means सबसे ज्यादा बच्चों को क्या पसंद है? Which food item is the least favorite? तो अब सबसे कम बच्चों को क्या पसंद है? So we can see कि सबसे कम नंबर किसका है? That is 6 and it belongs for noodles. तो सबसे कम बच्चों को क्या खाना पसंद आता है? That is noodles. Correct? Then it says how many students are there in the class? कि स्टूडेंट क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? तो ऑब्वियसली हम इन सभी नंबर्स को ऐड ऑन कर लेंगे. दैट इज 12 प्लस 8 is 20, 20 plus 10 is 30 and 30 plus 6 is 36. राइट, हमने इन सभी नंबर्स को ऐड कर लिया है. दैट इज 12 plus 10 plus 6 plus 8. That gives the answer 36. Correct? So that says that there are total 36 students in the class. Correct? Then, how many more students like burger than pizza? कि बर्गर कितने बच्चों को ज्यादा पसंद है compared to pizza? Right? तो पिज्जा पसंद है 8 बच्चों को और बर्गर पसंद है 10 बच्चों को. अब हमें निकालना है बर्गर कितने बच्चों को ज्यादा पसंद है. तो we'll subtract the numbers of these two items and that gives 2 answer. 10 minus 8 is 2. So hence 2 students more like burger than pizza. Right? Then next question is also the same. I hope you'll be easily able to complete that. Then next. Now we have the question which says represent the following data in the form of a pictograph. तो अब हमें ये सभी
जो डेटा दिया गया है इसको रिप्रेजेंट करना है पिक्टोग्राफ की फॉर्म में, राइट? So it says number of saplings planted by grade 3 students in 5 days. तो अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ सैपलिंग्स दी गई हैं जो कि हर बच्चे ने प्लांट किए थे 5 डेज में, राइट? सो हमें इनका पिक्टोग्राफ बनाना है. दैट इज वेरी सिंपल. हमें यहाँ पर डेज और नंबर ऑफ सैपलिंग्स डेटा दिया गया है एक टैबुलेटेड फॉर्म में. तो अब जल्दी से इसका एक पिक्टोग्राफ बना लेते हैं, राइट? तो सबसे पहले here we are going to write the name of days. यहाँ पर होगा नेक्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ प्लांट्स. क्लियर? अब हम एक की बना देते हैं अच्छी सी. तो की में हम लगते हैं एक ट्री, राइट? सो वन ट्री विल रिप्रेजेंट वन ट्री. क्लियर? सो ये हमारी की बन गई. नेक्स्ट थिंग इज टू गिव अ पर्टिकुलर टाइटल टू द डेटा. अब इस डेटा का टाइटल हम क्या रख सकते हैं, राइट? नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय ग्रेड 3. क्लियर? नाउ नेम ऑफ डेज लिख लेते हैं. दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे and Friday. Correct? Now next we have to see the number of trees. So here it is 10. So Monday को 10 है, so we'll draw 10 figures over here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Right? Then next we have number on Tuesday, that is 9. So Tuesday के लिए 9 trees draw करते हैं. So it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Clear? Then we have 10 on Wednesday. Again we need to draw 10 figures. So it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Right? Then we have 7 on Thursday. So let's draw 7 figures for Thursday. So it is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Right? Then next we have 8 for Friday. So Friday के लिए 8 figures draw करते हैं. Just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Clear? So this is how we are going to draw these pictographs, right? Now, moving ahead to the next topic that we have over here is a bar graph. अब ये bar graph क्या है?
Let's find out. So a bar graph is a chart that uses bars to show comparisons between categories of data. कि एक बार ग्राफ एक ऐसा चार्ट है जो बार्स को यूज करता है ताकि हम अलग अलग कैटेगरीज में डेटा की कंपैरिजन कर पाए, राइट? इट कंसिस्ट ऑफ 2 लाइंस, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 1 वर्टिकल लाइन। इसमें 2 लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, राइट? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार्स आर आल्सो यूज्ड, और इसी तरीके से इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों भी बार्स का यूज हम कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ दीज बार्स डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड, कि जो इन बार्स की लेंथ होती है वो डिपेंड करती है क्वांटिटीज पे जिन्हें वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। द वैल्यूज रिटन ऑन बोथ लाइंस शुड हैव इक्वल इंटरवल्स, कि जो वैल्यूज हैं जो कि दोनों लाइंस पर लिखी होती हैं उनके पास इक्वल इंटरवल्स होने चाहिए, यानी उनके बीच में जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। बार ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ टाइटल एंड अ स्केल एंड इट हेल्प्स टू कंपेयर द रिकॉर्डेड डेटा इजीली, कि जो बार ग्राफ्स हैं उनमें एक टाइटल एक स्केल होता है जो उनकी हेल्प करता है ताकि रिकॉर्डेड डेटा को इजीली कंपेयर किया जा सके, राइट? So it says, let us take a look at an example of bar graph. अच्छे से समझते हैं बार ग्राफ को with the help of this example जो कि यहाँ पर दिया गया है, right? So we have a figure over here of the bar graph which says this is the y-axis, that means the vertical line, right? हमने पढ़ा था कि इसमें 2 लाइंस होती हैं, 1 is vertical and 1 is the horizontal line, और horizontal line को हम x axis के नाम से जानते हैं, right? Then यहाँ पर हमें अलग अलग बार्स दी गई हैं, जैसे कि this one, this one, this one, this one and this one. All these are the bars of different colors that are showing us what data has been collected. ये हमें बताती है क्या क्या डेटा इकट्ठा हुआ है। Then ये जो स्पेस यहाँ पर है this is known as interval, right? interval यानी गैप, क्लियर? और ये सभी बार्स के बीच में बिल्कुल इक्वल होता है, करेक्ट? देन टाइटल shows what the graph is about. जो टाइटल होता है वो हमें ये बताता है कि ग्राफ एक्चुअली किस बारे में है। जैसे कि हमने पिक्टोग्राफ में भी ग्राफ को एक टाइटल दिया था, सेम बार ग्राफ में भी हम एक टाइटल उसे प्रोवाइड करते हैं, करेक्ट? तो यहाँ पर टाइटल था पर फेवरेट कलर, राइट? अब यहाँ एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर आप देख सकते हैं कि हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए गए हैं। लेबल दैट शोज व्हाट इज बीइंग काउंटेड, तो ये उस चीज का लेबल है जो हमें बताता है कि क्या चीज काउंट की जा रही है, राइट? और यहाँ पर हमें कलर्स के नेम दिए गए हैं, दैट इज पिंक, ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड ब्लू, करेक्ट? देन यहाँ पर एक स्केल है जो हमें शोज दैट शोज अस द इंटरवल एंड अमाउंट ऑफ डेटा। अब ये हमें नंबर ऑफ इंटरवल दिखा रहा है और साथ ही डेटा दिखा रहा है, राइट? अमाउंट ऑफ डेटा दिखा रहा है, क्लियर? सो हम देख सकते हैं पिंक 0 से स्टार्ट हो रहा है और 2 तक जा रहा है, राइट? देन ऑरेंज इज गोइंग टिल 5, येलो इज गोइंग टिल 7, green is going till 3 and blue is going till 4, correct? and यहाँ पर हमें एक स्केल भी दिया गया है जिसमें दिख रहा है कि 1 unit is equal to 1 child, right? तो ये जो एक यूनिट है ये 1 child को रिप्रेजेंट करती है, क्लियर? then now we have the next topic which is interpretation of a bar graph. अब ये interpretation of a bar graph क्या है? Let's see. The image alongside is a bar graph for the type of food liked by students of grade 3. तो ये जो इमेज है ये एक ऐसा बार ग्राफ है जो हमें बताता है कौन से बच्चे को कौन सा खाना सबसे ज्यादा पसंद है, राइट? नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो इस
बार ग्राफ के एनालिसिस पर बेस्ड हमें बताना है कि किस बच्चे को कौन सा फूड आइटम ज्यादा पसंद है. So the very first question says, what type of food is liked by most number of students? कौन सा फूड आइटम है जो कि सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है? So it is pasta. As we can see कि पास्ता का जो बार है वो सबसे ऊपर गया है, that represents 8 number, right? So इसीलिए यहाँ पर हमने पास्ता को प्रेफरेंस दी है. Next question asks, what type of food is liked by the least number of students? तो अब हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फूड आइटम है जो बच्चों को सबसे कम पसंद है. तो वी कैन सी जो बार ग्राफ सैलेड के ऊपर है वो सबसे छोटा है, जो हमें सिर्फ 2 पर रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है. सो ऑब्वियसली द आंसर गोज सैलेड, राइट. देन इट सेज हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स लाइक बर्गर देन सुशी. तो अब कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको बर्गर पसंद है एज कंपेयर टू सुशी. तो बर्गर कितने बच्चों को पसंद है? इट इज 6. सुशी कितने बच्चों को पसंद है? इट इज 4. सो डिफरेंस इज इक्वल टू 6 minus 4, that is 2 students. Question that we have is the construction of a bar graph. अब ये बार ग्राफ हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे वो सीखते हैं. सो इट सेज द नंबर ऑफ रैक्स इन अ वार्डरोब इज गिवन बिलो. कि जो नंबर ऑफ रैक्स हैं वो यहाँ पर हमें दी गई हैं जो कि एक वार्डरोब में है. तो इट सेज यहाँ पर हमें वार्डरोब के नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 एंड देन वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द नंबर ऑफ रैक्स इन ईच वार्डरोब. कि फर्स्ट वार्डरोब में वी हैव 3 रैक्स, सेकेंड में वी हैव 5 रैक्स, थर्ड में we have 6 racks, 4 में we have 4 racks and 5 में we have 8 racks, right? Now, steps for constructing a bar graph is as follows. अब यहाँ पर we have some steps for constructing a bar graph. Let's read those steps. So step 1 says, read the data and draw a scale on the vertical line marking the number of books on a rack. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले डेटा रीड करना है और उसके बाद एक स्केल बनाना है वर्टिकल लाइन पे जिसपे हम नंबर मार्क करेंगे. देन स्टेप 2 says draw 5 bars showing the number of books on each rack on the horizontal bar, right? तो अब हमें 5 बार्स बनानी है जो कि नंबर रिप्रेजेंट करेंगी हर वार्डरोब में रैक का, राइट. सो एज वी कैन सी 1 में 3 रैक्स हैं तो 1 वार्डरोब पे हमने 3 पर बार बनाया है. देन 2 को हमने 5 पर बार दिखाया है, 3 का हमने 6 पर बार दिखाया है एंड सो ऑन, राइट. देन स्टेप 3 गिव द बार अ टाइटल एंड अ स्केल ऑफ मेजरमेंट. तो फिर हमें बार ग्राफ को एक टाइटल प्रोवाइड करना है जो कि हमने दिया है रैक्स इन अ वार्डरोब, करेक्ट. उसके बाद एंड अ स्केल ऑफ मेजरमेंट. फिर हमें एक स्केल ऑफ मेजरमेंट देना है. दैट मीन्स स्केल इज इक्वल टू 1 यूनिट रिप्रेजेंट्स 1 रैक ओनली. क्लियर? आफ्टर दैट नाउ let us have a look on the exercise, for which the question number 1 says the bar graph shows what number and types of flowers present in the balcony of Mrs. Sharma. तो मिसेस शर्मा की बालकनी में कितने फ्लावर्स हैं और कितने नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं, कौन कौन से फ्लावर्स हैं, that has been represented with the help of the bar graph. So let's see what they are telling us. तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ फ्लावर्स दिए गए हैं, यहाँ पर हमें नेम ऑफ फ्लावर्स दिए गए हैं एंड दीज बार्स आर रिप्रेजेंटिंग देयर नंबर्स. टाइटल है टाइप्स ऑफ फ्लावर्स और स्केल दिया गया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 फ्लावर. क्लियर? सो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब हमें इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस. So there's which flowers are more in number compared to lotuses, right? तो यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिसमें बोला है कि लोटसेस से ज्यादा कौन से फ्लावर्स के नंबर हैं.
So we can say कि lotuses से ज़्यादा सिर्फ एक ही flower के number है, that is lilies, right? So we can write lilies over here. Then next question says, how many flowers are there in total? कि total में कितने flowers हमारे पास हैं? So we are going to add the numbers of each and every flower. So roses are 5, then lilies are 9, then orchids are 5, tulips are 6, and lotuses are 7. So 5 plus 9 is 14, 14 plus 5 is 19, 19 plus 6 is 25, and 25 plus 7 is 32, right? So we can say that there are total 32 flowers. How many more lilies are there than roses? कि जो lilies है वो roses से कितनी ज्यादा है? तो number of lilies minus number of roses, that is 9 minus 5 gives us 4. That means 4 flowers are more as compared to the roses, right? Next, which flower are the most in quantity? कौन से flowers हैं जो कि quantity में सबसे ज्यादा है? You all can see कि सबसे बड़ा बार किसका है? Lilies का. So we are going to write lilies over here. Then, which two flowers are the same in number? कौन से दो flowers हैं जो कि numbers में same है? That is, we can see कि 5 and 5, two flowers are same. That is roses and orchids. Correct? Now, moving ahead. Next question. It says the following data was collected regarding the number of students in classes 1 to 5 who participated in an art competition. तो यहाँ पर हमें डेटा दिया गया है स्टूडेंट्स का जो कि 1 to 5 क्लास के थे और पार्टिसिपेट किया था उन्होंने आर्ट कंपटीशन में. तो ड्रॉ द बार डायग्राम with this information and answer the following questions. राइट तो हमें एक बार ग्राफ बनाना है सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन के साथ और उसके बाद हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. करेक्ट. सो हाउ वी आर गोना डू दिस. सबसे पहले वी आर गोइंग टू ड्रॉ द बार ग्राफ. राइट, पहले हम एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं. देन यहाँ पर हमारे पास होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, number of students, right? Then after that we'll have the class over here, correct? And then after that we'll have the units, right? तो अब ये units हमें दी गई हैं 10, 12, 11, 15 and 9. So what we are going to do, we'll draw the scale over here, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 10, 11, 12, 13, 14. अब वी कैन सी कि ये जो नंबर्स हैं ये बहुत ज्यादा है. इवन 15 तक हमारे पास नंबर्स हैं एंड वी डोंट हैव इनफ स्पेस, या फिर हम कहेंगे कि जो बार्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे. तो इनको बैलेंस करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ पर जो यूनिट्स के नंबर्स होंगे उनको स्किप करके ले लेंगे. जस्ट लाइक 0 ओवर हियर, देन वील स्किप 1 एंड वील राइट 2. Then we'll skip 3, we'll write 4. We'll skip 5, we'll write 6. We skip 7, we write 8. We skip 9 and we write 10. We skip 11, we write 12. We skip 13, we write 14. We skip 15, we write 16. Correct? Now, what we are going to do? Class लिखेंगे, that is 1.
2, 3, 4 and 5. अब स्केल बनाते हैं. स्केल में हमने देखा था एग्जाम्पल्स में कि 1 यूनिट represents only one thing, but हम यहाँ पर 1 की जगह we'll say that 1 unit represents 2 students. Correct? Right? Now, we have the questions that says how many students participated in the competition altogether. Right? तो ये तो क्वेश्चंस हैं. सबसे पहले हम बार ग्राफ पे आते हैं. बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो क्लास 1 के हैं 10 स्टूडेंट्स. सो 10 वी हैव ओवर हियर. तो हम अपना बार ग्राफ 10 तक रखेंगे. दैट इज लाइक दिस. देन वी हैव 12 फॉर सेकेंड क्लास. तो सेकेंड क्लास के लिए 12 रखते हैं. दैट मीन्स ओवर हियर. देन थर्ड क्लास के लिए इट इज 11. सो अब व्हाट इज द सीन कि 10 है और 12 है. 11 तो है ही नहीं. तो विल से कि 11 जो है वो यहाँ 10 और 12 के बीच में कहीं लाए होगा. तो हम यहाँ से ले लेते हैं like this. And third class is showing 11 students. Then fourth is showing 15. Now again we don't have 15 but it lies between 14 and 16. So we'll mark the graph like this. Then for fifth class we have 9. Again 9 between 8 and 10. So just here somewhere. So that means this. Clear? And in this way we have drawn the bar graph. Now the thing comes, we have to provide a title to the bar graph, right? So title क्या होगा? That is number of students in the art competition. Clear? Now, we are going to answer the questions, which is how many students participated in the competition altogether. तो number of students बताने हैं जिन्होंने participate किया था competition में. तो we'll add all these numbers. So that means 10 plus 12, 10 plus 12 plus 11 plus 15 plus 9. So it is 10 plus 12 is 22. 22 plus 11 is 33. 33 plus 15, 48. 48 plus 9 is 57. Right? So that means in total 57 students participated in the art competition. Then from which class did the minimum number of students participate? कि कौन सी क्लास थी जिसमें से सबसे कम बच्चों ने participate किया था? We can see 9 is the least number, which is from class 5. So we can say class 5. Then how many more students from class 4 participate than class 3? कि क्लास 4 में कितने बच्चों ने ज्यादा पार्ट लिया एज कंपेयर टू क्लास 3. तो इन दोनों के नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करके जो डिफरेंस आएगा दैट इज 4. 15 minus 11 is 4. दैट मीन्स 4 स्टूडेंट्स ने ज्यादा पार्टिसिपेट किया फ्रॉम क्लास 4. देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 2 एंड क्लास 5 पार्टिसिपेटेड इन टोटल? कि क्लास 2 और क्लास 5 में टोटल that means 12 और 9 को हम ऐड कर देंगे. that will give 21 students in total. Clear? Now next, let's talk about the chapter at glance and see कि हमने इस chapter में क्या क्या पढ़ा. A collection of information, facts and figures is called data. कि एक कलेक्शन इंफॉर्मेशन का, फैक्ट्स का या फिर फिगर्स का, उसे हम डेटा के नाम से जानते हैं. द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, रिपोर्टिंग एंड रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमैटिक वे इज नोन एज डेटा हैंडलिंग. कि जो प्रोसेस है कलेक्शन का, रिपोर्टिंग का और रिप्रेजेंटिंग यानी कि इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने का एक सिस्टमैटिक वे में, उसे कहा जाता है डेटा हैंडलिंग. Representing data using pictures or symbols is called a pictograph.
कि जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर्स और सिंबल्स की मदद से, तब हम उसे एक पिक्टोग्राफ कहते हैं. A pictograph always has a title and a key to explain what each picture or symbol stands for. कि पिक्टोग्राफ में पक्का से ही एक टाइटल और एक की दी गई होती है जो हमें बताती है कि कौन सा फिगर या कौन सी पिक्चर कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है. Pictographs can be used when number of observations is small. पिक्टोग्राफ्स को हम यूज कर सकते हैं जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा छोटे हो. राइट. A bar graph is a chart that uses bars to show comparisons between categories of data. कि एक बार ग्राफ एक ऐसा चार्ट है जो कि बार्स यूज करता है ताकि हम डेटा की कैटेगरीज को कंपेयर कर पाए आपस में. राइट. So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.